करेंगे, there is something which we saw. हमने ये भी जाना कि there is something called a rest operator, जो आपके split operator जैसा ही है, but then it is being passed in the function in the form of parameter, and that will help you to take area value into one function. हम वहाँ पे रुके हुए थे ना, इससे के भी थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, जिसके बारे में बात अपनी आज होगी. चलिए, so let us begin. Okay, so no new request on it. Again, good afternoon everyone and welcome to the class of jQuery, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं about the REST operator in function. जो आपका जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर जो आप jQuery में यूज करते हैं, प्लस आप उसको जावास्क्रिप्ट में भी लगा सकते हैं. Then we will talk about the document object model inside your jQuery. उसके बारे में बात करेंगे. फिर अंकल यहाँ पे थे, उसके बाद हम बात करेंगे jQuery selector. We'll talk about jQuery selectors and then काफी सिंपल टॉपिक है ये. Then उसके बाद हम आएंगे अपने jQuery document object model के ऊपर. Using jQuery, how you can modify your document of the web page जो आपने बनाए होंगे jQuery को लगा के या फिर JavaScript को लगा के. Alright, we'll understand about this. कि भाई how the document modification is far easier compared to your JavaScript. Okay, because we know that jQuery के अंदर we can write less amount of code and we can get maximum amount of output. So how we can achieve that by writing less code? That is all something जो हम आज क्लास में पढ़ने वाले हैं, starting with REST operator, then jQuery selectors and DOM. Okay. So what we said yesterday is कि भाई अपने पास REST operator क्या है? Basically, it's one type of operator which will allow me to take multiple input into one variable. मतलब बात ऐसी हो गई कि अगर मैं कोई एक सिंपल सा फंक्शन लिखता हूँ यहाँ पे, फंक्शन माई फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया इसका नाम, and then I'm passing it one parameter, but the parameter is not being passed very simple like this. Let's say मैंने इसका नाम दिया वेरिएबल का डेटा, तो डेटा is my simple variable, ठीक है. And then if you pass something like this, अगर आप इसमें ऐसे डेटा पास करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आप एक वैल्यू पास करेंगे. And then you may like to do anything with that data. You may just simply print it, saying that data print हो रहा है आपका. And while calling the function, आपको पास करना पड़ेगा एक पैरामीटर यहाँ से. Let's say आपने पास किया कुछ वैल्यू, क्या होगा, this 20 will be assigned into this and then वो आपको print हो जाएगा. As of now, this variable is having the capacity to hold only one value. अगर one value जो आपने पास करी यहाँ से वो यहाँ पे जाएगा और आपने उसको print करेगा. Now the entire thing changes the moment you add REST operator in function parameter. मतलब क्या है, आप यहाँ पे आएंगे बोलेंगे triple dot. Now this variable is not the single variable, or I can say it is not the ordinary variable जहाँ पे वो सिर्फ एक वैल्यू लेगा आपसे. Now this variable holds the capacity to store more than one value.
इसका मतलब ये रहा कि अगर आप फंक्शन को कॉल करते टाइम में इफ यू पास द पैरामीटर लाइक दिस, इट विल टेक ऑल द वैल्यूज ऑल टुगेदर। ये पांचों वैल्यू जाके आपके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगी बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेटर। The rest operator is the operator which helps a variable to consume more than one value. आप लिख लो, rest operator is the operator which helps the function parameter variable to hold more than one value. Rest operator is the operator which helps the function parameter variable to hold more than one value. Rest operator is the operator which makes the function parameter to hold more than one value. Which makes the function parameter to hold more than one value. Rest operator is the operator which makes the function parameter to hold more than one value. अब सिंटैक्स आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, so this all 5 number can be stored by this single variable. और अब यहाँ पे इसको हाईलाइट करेंगे कि भैया ये है क्या आपका, ये आपका रेस्ट ऑपरेटर है। जैसे डॉट इज माई रेस्ट ऑपरेटर, जैसे डॉट इज योर रेस्ट ऑपरेटर। ये सिंटैक्स आप जरा नोट कर लो एक बार। ये सिंटैक्स नोट करना आपने, wherein you get to know कि भाई this dot is my rest operator. एंड जब आप फंक्शन कॉल करते हैं, यू आर पासिंग द मल्टीपल पैरामीटर। अब जितने पास करेंगे दिस ऑल डेटा विल बी स्टोर्ड, दिस ऑल वैल्यू विल बी स्टोर्ड इनटू वन वेरिएबल डेटा करके। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई दिस ऑल वैल्यू विल बी स्टोर्ड फ्रॉम हियर टू हियर डेटा। आप इसको ऐसे ही यहाँ पे बोल सकते हैं, और मैं यहाँ कह सकता हूँ सिंपल से कि भाई डेटा वेरिएबल is capable of storing all values passed. कब भाई? During function call. During function call. फंक्शन को कॉल करते टाइम पे जो मैं जितनी वैल्यू में पास कर रहा हूँ, नाउ मैं वेरिएबल कैन टेक ऑल दी वैल्यूज। मैं 2 पास करूँ 2 ले लेगा, मैं 3 पास करूँ 3 ले लेगा, मैं 10 पास करूँ तो 10 ले लेगा। तो डेटा इज द नेम ऑफ ए वेरिएबल, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। चलिए, सो अब जब आपके एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू आ जाती है तो कैसे बिहेव करता है फिर? लाइक एन एरे। ठीक है, तो आप जो अंदर कोड लिखेंगे, आप कोड ऐसे लिखेंगे जैसे आप लिखते हैं कोड आपके एरे से वैल्यू निकालने के लिए। तो आप क्या करते हैं, वहां पे लूप लगाते हैं। तो आपने अंदर लूप लगाना पड़ेगा,
आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी एंड देन उस वैल्यू को आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, यू वांट टू टेक सम ऑफ ऑल द नंबर, आप कर सकते हैं। यू वांट टू टेक एवरेज ऑफ ऑल द नंबर, आप वो कर सकते हैं। आइए देख, तो कल हमने टाइप ऑफ एंड आर्गुमेंट्स डॉट लेंथ हमने कल देख लिया था, है ना। हमने जो प्रोग्राम कल बनाए थे, कल के प्रोग्राम के हिसाब से अगर मैं सपोज में इन सबको करता हूँ कमेंट बाय अप्लाइंग मल्टीलाइन कमेंट, ये सिंपल सा आपका जावास्क्रिप्ट का एक छोटा, मैं एक सिंपल सा अलग सा कोड लिखता हूँ एंड देन फिलहाल मैं इस फंक्शन को कॉल नहीं करता। कल जो हमने करा था प्रोग्राम दैट वाज फंक्शन माय फंक्शन, तो फिर यहाँ पे मैंने पैरामीटर पास कर दिया था। जैसे मैंने पास किया पैरामीटर और बी करके मैंने पास किया, ठीक है। हमने कल कराया था यहाँ पे कंसोल लॉग एंड देन वी जस्ट सिंपली प्रिंटेड द टाइप ऑफ डेटा व्हिच आई एम पासिंग इन बी। मैंने बोला टाइप ऑफ बी प्लस मैं कितना डेटा पास कर रहा हूँ, तो मुझे उसका क्या चाहिए था, लेंथ चाहिए था। आर्गुमेंट जो मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पे उसके लेंथ मतलब कितने में पास कर रहा हूँ, कॉल करते टाइम फंक्शन को एंड देन हम सिंपली इसको कॉल करते हैं। फिलहाल इसको कोई पास नहीं करते, नो आर्गुमेंट बीइंग पास्ड, तो टाइप ऑफ बी विल गिव मी अनडिफाइंड एंड आर्गुमेंट डॉट लेंथ विल गिव मी 0। माय फंक्शन हम लिखते हैं यहाँ पे, मैंने पास किया फिर एक पैरामीटर। माय फंक्शन में यहाँ पे लिखता मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ लेट्स से कुछ ज्यादा पैरामीटर। And now my function I'm calling again, but I'm passing here a string, ठीक है। सो हमने यहाँ पे जो फंक्शन बनाया हुआ है उसको जो मेरे पास आउटकम दिख रहा है अभी, तो शुरुआत में जब मैंने फंक्शन को कॉल करा आई डिड नॉट पास एनी पैरामीटर, इट इज जस्ट अ सिंपल प्लान टू फंक्शन कॉल। ये फंक्शन एक पैरामीटर ले रहा है मेरे से, मैंने जब कॉल करा मैंने कुछ पास नहीं करा, तो बी के पास कुछ नहीं गया, इसलिए टाइप ऑफ इज माय ऑपरेटर which tells कि आपका जो वेरिएबल उसमें किस तरह की वैल्यू आपने पास की है। फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं है तो मुझे क्या दिखा रहा है, अनडिफाइंड। और चूंकि आपने यहाँ से कुछ पास नहीं करा, therefore the arguments length is 0। तो आर्गुमेंट्स मतलब पैरामीटर, जो एक्चुअल पैरामीटर जो पास करते हैं यहाँ से वो है नहीं कुछ, तो उसको जो लेंथ है वो क्या होगा, 0 आएगा। नेक्स्ट टाइम आपने पास करा 1, तो 1 यहाँ जाएगा, 1 क्या आपका नंबर है, इट्स गिविंग यू टाइप ऑफ बी इज गिविंग यू नंबर एंड देन द आर्गुमेंट स्टार्ट लेंथ इज गिविंग यू 1। आपने एक पैरामीटर पास करा, अगली बार आपने पास करे 4 पैरामीटर नंबर टाइप के, तो चारों आपके पास यहाँ पे जा रहे हैं। टाइप ऑफ बी क्या हो रहा है, आपका नंबर आ रहा है एंड द आर्गुमेंट्स आर 4 बिकॉज मैंने यहाँ पे 4 पैरामीटर पास करे। एंड देन अब की बार अपने पास करा स्ट्रिंग, तो आपका टाइप ऑफ बी लिस्ट में दिया स्ट्रिंग एंड देन चूंकि आपने एक वैल्यू पास करी तो आपको मिला यहाँ पे लेंथ में 1। So such type of feature wherein one function is able to take the data of different type and in different number of parameter, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं, या फिर आप उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एक फंक्शन अलग अलग नंबर ऑफ पैरामीटर और अलग टाइप के पैरामीटर ले पा रहा है, उसको आप कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो कल हमने ये करा कि आप एक फंक्शन लिखा एंड देन फंक्शन को आपने अलग अलग पैरामीटर पास करके उसको आपने कॉल कर लिया। ये जो हम कर रहे हैं यहाँ पे इसका मतलब ये था कि भाई आपके jQuery के अंदर भी फंक्शन सारे वैसे ही होते हैं जैसे आपने जावास्क्रिप्ट में लिखे थे फंक्शन। तो जो सारे फंक्शन आपने पढ़े हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वो सारे फंक्शन आपके यहाँ पे सपोर्ट होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड बाय दीस एग्जांपल, ओके। चलिए, सो हम अभी क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे अभी यहाँ पे अबाउट रेस्ट ऑपरेटर, ओके। हम अभी बात कर रहे थे यहाँ पे अबाउट रेस्ट ऑपरेटर कि भाई रेस्ट ऑपरेटर आपका क्या है। चलो, तो इसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं। फिलहाल मैं इन सबको करता हूँ हाइड, तो हालांकि मैंने ऊपर लिखा होता है बट फिर भी बना लेते हैं यहाँ पे निकाल फंक्शन। फंक्शन आपने कहा
गेट सम मैंने ऐसा नाम दे दिया, नंबर्स के मैंने वेरिएबल ले लिया, ठीक है। एंड आई एम इमेजिनिंग बिकॉज आपने जैसे लगाया यहाँ पे तीन डॉट ऑपरेटर, मतलब दिस इज योर रेस्ट ऑपरेटर व्हिच विल मेक दिस नंबर्स वेरिएबल टू कंज्यूम मोर देन वन वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब कॉल करेंगे जैसे गेट सम वाले फंक्शन को, यू आर कैपेबल ऑफ पासिंग मोर देन वन वैल्यू, तो आप पास कर सकते हैं, नंबर्स विल बी एबल टू टेक ऑल द वैल्यू, ठीक है। तो अगर आपके पास एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू आई, इसका मतलब क्या होगा, अरे है, तो आपने कोड निकालना पड़ेगा कि भाई आप इस अरे से रिकॉर्ड कैसे निकालोगे, कैसे प्रिंट करोगे। हम्म? तो अगर मुझे सम चाहिए तो मैंने सम नाम का वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है, यह मैंने, चलो ऊपर सम में कुछ और भी है तो मैंने तो कुछ और लिखा, लेट एस इक्वल टू मैंने बोला 0। चलिए, अब आपको नंबर से डेटा निकालना है, एक एक उसको आपने सम करना है। हमने पढ़ा था फॉर ऑफ लूप, फॉर ऑफ, फॉर लूप भी लगा सकते हैं सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, बट फॉर ऑफ लूप लगाए तो बेटर है। तो आप क्या बोलते हैं, फॉर लेट आई ऑफ नंबर्स, मतलब क्या होगा, आपका आई नंबर के अंदर जाएगा और उसका एक एक वैल्यू निकाल के आपको देगा। तो आपका नंबर में अभी आपके पास 1 2 3 4 5 5 नंबर जाएंगे, ठीक है। तो आई जाएगा इसके अंदर और वहां से वैल्यू निकालेगा, अपने पास रखेगा। मुझे क्या चाहिए, सबका सम चाहिए, तो आपसे सम मुझे रखना कहाँ है, एस में रखना है। एस इज इक्वल टू एस प्लस आई, देखिए आई में सारी वैल्यू आ रही है मेरी, आई जाएगा नंबर्स के अंदर, उसको पहले क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 आएगा इसमें, इसके अंदर शुरुआत में एस की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 प्लस 1 इसमें क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगली बार आई जाएगा वहां पे नंबर्स पे, उसको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ पे मेरे पास एस में क्या है, 1 है, अब क्या होगा, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए मेरे पास एस में क्या होगा, 3 होगा, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, ठीक है। In case you want to see this sum being printed in each line, a sum being calculated in each line, then you can print within inside, आप लूप के अंदर ही प्रिंट कर लो इसको और देखो सम कैसे हो रहा है। और आप लूप के बाहर प्रिंट करेंगे तो आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, हर स्टेप पे जो सम हो रहा है वो मिलेगा आपको। शुरुआत में 1 है, फिर 1 प्लस 2 है, देन 3 प्लस 3 है, देन 6 प्लस 4 है, एंड देन 10 प्लस 5। इन सबका टोटल करेंगे तो आपको कितना आएगा, 15 आएगा, जो आपको लास्ट वैल्यू मिल रही है। अब यही कंसोल डॉट लॉग, इन केस यू डू इट आउटसाइड द लूप, तो आपको क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ 15 आएगा, दैट इज द लास्ट वैल्यू, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि भाई हाउ दिस वेरिएबल अलोन कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू बिकॉज ऑफ रेस्ट ऑपरेटर, ठीक है। ऑनलाइन टीम कुछ भी डाउट रहा प्लीज आस्क। तो ये था आपका सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट द फंक्शंस इन jQuery कि भाई आपने जावास्क्रिप्ट पे जब भी कुछ सीखा होगा वो सारी की सारी चीजें आपके पास यहाँ पे अवेलेबल तो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। Let's move on and talk about the selectors in document object model. So when we talk about selector, we all understand कि भाई selector का मेरे पास क्या क्या वैरायटी होगा, उसको हम कैसे यूज करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। But what is the purpose of selector? What is the example? What is the use of selector? Online team, फ्रॉम द CSS पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहाँ पे आप वही काम करने वाले हैं पर वो डायनामिक तरीके से करने वाले हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट कोड, आई मीन jQuery कोड। So then according to you, what do you mean by selectors?
By any chance that anyone remember what is the meaning of selector? To find elements. Very good. Selector the as a word says कि भाई अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, HTML की डिजाइनिंग आप कर रहे हैं, तो उसमें आपके पास मल्टीपल HTML टैग्स हैं, उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर इज व्हाट वी डू इन सेलेक्टर्स. ठीक है. And those various parameter, various mode of selections are selecting the element based on their name or their ID or their class name. ठीक है. चलो. So selectors are used in HTML document to select any particular element so that it can provide the required styling to those elements. Okay. And there are various ways by which we can select the element. We can select the element by their name, by their ID, their class name, the attribute name, and attribute value also. ये सारा सब कुछ हमने देखा था डिटेल में इन CSS. सेम काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब कैसे कर रहे हैं इसको हम डायनामिक तरीके से कर रहे हैं और हम उसको jQuery की मदद से कर रहे हैं. ठीक है. चलो. So now we know that the basic syntax of the jQuery selector is, the basic syntax is what? The element name dot action. This is the basic syntax. We have also learned about the use of the ready function. So अब going forward आप जब भी कुछ कोड लिखेंगे, you should write that code inside document dot ready function. पहले there is advice कि भाई आप जब भी कुछ कोड लिखें, that code has to be always written inside the dollar, because this is jQuery. Then element dot action मतलब document dot query function. इसका मतलब ये होता है कि भाई अगर आप जो भी UI पार्ट आप लोड करें अपने वेब पेज के अंदर, जब तक आपका UI पूरा लोड नहीं होता तब तक आपका ये सारा कोड रन नहीं होगा. Okay, that is the reason it is advised to put all the code inside document.ready function. Okay, and then for selector what we do, we use again dollar to के पास common syntax है, and then we put here selector. कौन सा selector? Any selector out of the element selector or the ID selector or the class selector. एलिमेंट मतलब हम वहाँ पे एलिमेंट या टैग का नाम दे देंगे, आईडी मतलब आईडी का नाम देंगे, और क्लास मतलब क्लास का नाम देंगे. तो अगर इसको हम डिमॉन्स्ट्रेट करें प्रैक्टिकली, तो अपने पास एक प्रोग्राम है जहाँ पे मेरे पास इसमें ये कुछ इसका यूआई में है, जहाँ पे वी हैव वन हेडिंग, वी हैव अ पैराग्राफ, वी हैव अ स्पैन, वी हैव अ div. Now out of all this 4 tag, I want to apply some styling, let's say on paragraph. ठीक है. अब मेरे पास और कोई दूसरा पैराग्राफ तो है नहीं, तो the easiest way for me to pick up paragraph here is using element selector. तो फिर हमने यहाँ पे कोड में क्या लिखा हुआ है, हमने लिखा यहाँ पे document.ready, ये तो सारा कोड आएगा. And we said the selector name, the element selector dot action. Action क्या है मेरे पास अभी, cases अप्लाई करना. तो dot CSS मेरे पास फंक्शन है which takes 2 parameter, the property name comma property value. So by doing this thing, what we're doing here, we are assigning the background color yellow to my paragraph. ठीक है. आपने सेलेक्ट कर लिया पैराग्राफ को, उसमें आपने अप्लाई करा CSS, आपने प्रॉपर्टी क्या लिखी कि इसका बैकग्राउंड कलर ये हो जाए. ठीक है. वेरी सिंपल सिंटैक्स. जैसे काम आप करते थे आपको CSS के अंदर, सेम काम आप यहाँ पे कर रहे हैं, बट यूजिंग योर jQuery सिंटैक्स, जो आपको रन टाइम पे काम करने में बहुत मदद करता है. Let us write that program separately. यहाँ पे आते हैं, बोलते हैं यहाँ पे jQuery selector dot html. jQuery selector. So अब मैं यहाँ पे कुछ ट्राई रखने वाला हूँ, तो I'll be keeping, let's say here some tag using jQuery selector. फिर लिखा मैंने पैराग्राफ, selectors are easiest tool to choose any element from group of elements
in a web page. इस पैन में लिख दिया मैंने यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स, देन आपने यहाँ पे लगा दिया अभी div के अंदर आपने बोला एलिमेंट सेलेक्टर। ऐसे कुछ आपने यहाँ पे देखो डेटा एक यूआई आपने बना दिया, वी हैव रिटन समथिंग हियर। अब रन करते हैं इसको आप, तो आपने जो भी कुछ लिखा था ऐसे आपका यहाँ पे आ गया आउटपुट। तो आपकी यूआई यूजर इंटरफेस में तो आपने ये कोडिंग करी है। नाउ यू वांट टू अप्लाई सर्टेन स्टाइलिंग यूजिंग योर jQuery सेलेक्टर। जैसे आप जावास्क्रिप्ट में डॉम में करते थे वो काम आप यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, सेलेक्टर से कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप आएंगे आपके स्क्रिप्ट के अंदर एंड देन आप जब भी कोई स्क्रिप्टिंग रखते हैं या फिर आप जब भी कोई jQuery का प्रोग्राम लिखने जाते हैं तो आपके पास एक पहला काम जो करना क्या होता है, इंक्लूड योर jQuery लाइब्रेरी फाइल। ओके, उसके बिना आपका काम नहीं होगा। jQuery 3.7.1.min.js पहले आप इंक्लूड करेंगे इसको एंड देन यू आर फ्री टू यूज योर jQuery syntax। व्हाट इज योर सिंटैक्स है अपना, तो ये सारा कोड आप लिखो, कहाँ लिखो, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर कुछ काम होना चाहिए। काम क्या होना चाहिए भाई, काम ये होना चाहिए मुझे अभी कुछ सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए मेरे पास अगेन सिंटैक्स क्या होगा, एलिमेंट इज पैराग्राफ डॉट एक्शन विद सीएसएस टेक्स्ट टू पैरामीटर, पहला प्रॉपर्टी का नाम तो क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं अभी बैकग्राउंड कलर, और आपने लेट्स से उसे नाम दे दिया, कोई कलर दे दिया, तो यहाँ पे ओके, स्पेलिंग मेरी बराबर है ना यहाँ पे, हाँ ठीक है। सो आपने कह दिया बैकग्राउंड कलर टू दिस पैराग्राफ ग्रीन, उसको करते हैं रन। You could see here that कि आपके उन सारे एलिमेंट में से you are able to select one paragraph and you have applied some styling। स्टाइलिंग आपने कैसे करी है, आपने कोडिंग से करी है, आपकी यूआई पार्ट में कहीं कुछ आपने करा नहीं है। एंड यू आर आल्सो नॉट यूजिंग एनी सेपरेट सीएसएस फाइल फॉर दिस। ठीक है, तो आप जो भी कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हैं, वांट टू अप्लाई लेट्स से फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, जो भी करना चाहते हैं वो सारा काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दी सिंटैक्स टू अप्लाई द थिंग इज वेरी सिंपल। अदरवाइज हम jQuery में इसमें जावास्क्रिप्ट में क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई नेम, ये जो भी करना होगा या फिर सिंपल आप इतना ही लिखो, आपका सिलेक्शन हो गया, तो उसके बाद आप पूरा प्रॉपर्टी का नाम काम कर दो, तो कम कोड में आपका काम हो रहा है। अब इसे में अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एक और मेरे पास पैराग्राफ आ जाए, तो मैं इसके बारे में लिखना शुरू करूँ, इन एलिमेंट सेलेक्टर the elements are selected by their name। ठीक है, अब मेरे पास दो पैराग्राफ हो गए एंड आई डोंट वांट टू अप्लाई सेम प्रॉपर्टी टू बोथ द पैराग्राफ। क्या करना होगा मुझे, और मुझे इसको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। देन आई मे अप्लाई हियर एट्रीब्यूट आईडी, बोलते हैं पैराग्राफ 1। ठीक है, या मेरे पास कंफ्यूजन हो गया कि मेरे पास दो पैराग्राफ, तो उनमें से आपकी प्रॉपर्टी किसको अप्लाई करनी है। तो नाउ यू विल से हियर, ये था आपका एलिमेंट सेलेक्टर। पहले मैं जरा यहाँ पे दे दूँ आपको, ये मैं हटा दूँ यहाँ पे, और एक प्रोग्राम जो मिल रहा है यहाँ से, हालांकि सिंपल तो बट स्टिल आपके पास होना चाहिए। तो लेट मी फर्स्ट शेयर दिस। अब मुझे क्या करना था, आउट ऑफ दिस टू पैराग्राफ, दिस पैराग्राफ 1 एंड दिस सेकंड पैराग्राफ,
मुझे सिर्फ इसको स्टाइल अप्लाई करनी है। नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग हियर, आई विल सिलेक्टिंग दिस एलिमेंट बेस्ड ऑन दी आईडी। तो आईडी में हम क्या लगाते हैं, हैश लगाते हैं। तो बोलेंगे यहाँ पे हैश, आईडी का नाम मेरे पास है p1 सेम कोड है, खाली आप एक जगह बदल दिया, आपका काम हो गया उसमें। ठीक है, क्या हुआ, आपने इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के बीच में से आपने इसको सेलेक्ट किया बेस्ड ऑन दी आईडी। तो इसे हम लगाते थे वहां पे मेथड क्वेरी सेलेक्टर, है ना, इट इज लाइक क्वेरी सेलेक्टर ओनली। यहाँ पे आप ब्रैकेट में आप कुछ भी पास कर दो, आपका वो वाला एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। आईडी है तो आपको हैश लगाना पड़ेगा, अगर आपका क्लास तो आपको डॉट लगाना पड़ेगा। ऑनलाइन टीम कोई भी डाउट रहा प्लीज आस्क। तो इसमें आते हैं आगे और एक काम और कर लेते हैं हम, दैट इज अप्लाई क्लास सेलेक्टर ऑल्सो, है ना। तो इसके अंदर मैं लेता हूँ यहाँ पे से एक पैराग्राफ, और मैं कुछ ऐसा फॉर्मेटिंग के लिए लगा देता हूँ कि इतना मुझे पैराग्राफ करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली यहाँ पे ले सकता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मुझे यहाँ पे बनाना क्या है, मुझे बनाना है एक लिस्ट, unordered list. I'll say unordered list, and then I'll say here the list item into lecture 4. फिर मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है, let's say some of the backend tool in .NET. थोड़ा सा नया कुछ सुनने को मिलेगा। तो I'll say C#, then you will say ASP.NET, then आप बोलेंगे .NET 4, आप बोलेंगे REST API। ठीक है, सो नाउ अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे अप्लाई करना है इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड वाले एलिमेंट को मुझे सेम तरीके से स्टार्टिंग देनी है। फर्स्ट लिस्ट आइटम को एंड सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट आइटम को मुझे सेम टाइप की स्टार्टिंग देनी है। व्हाट शुड आई डू इन दिस केस, मुझे इन दोनों को एक क्लास में रखना चाहिए। मतलब फर्स्ट एलिमेंट एंड तीसरे एलिमेंट को मुझे सेम स्टार्टिंग अगर देनी है तो आई शुड कीप देम इन द सेम क्लास। आई से क्लास list item, first and third चाहिए तो मैं I'll keep both of them in the same class। ठीक है, and now I can write here the another line of code to be a dollar। now my selector is class selector, उसका नाम क्या है, list items, list dash items .css। अब देखते हैं यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी लेता है क्या वो, लिस्ट आइटम में फर्स्ट एंड थर्ड वाले क्या क्या हो गया, फॉन्ट कलर ब्लू में आ गया। ओके, so we know that ki how do we why should we apply the class selector and how do we write that, syntax is dot। तो आपने यहाँ पे क्लास का नाम डॉट से लगा दिया और फिर आपने उसके आधार पे उन दो एलिमेंट को लिस्ट से सेलेक्ट करके स्टार्टिंग अप्लाई कर। ठीक है, तो ये सीन हियर द एलिमेंट सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर एंड क्लास सेलेक्टर, आप ये तीनों चीजें यहाँ पे देख ली हैं। कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें अभी तक? Okay, let's move on. So we have seen ID, we have seen class selector। ठीक है, चलो तो आप इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल है ये तो प्रैक्टिस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिस में आप सिंपल सा काम करेंगे ऐसा
सिंपल से प्रोग्राम आप बना रहे हैं, I'll not take much of your time। आपके पास यहाँ पे हेडिंग है, ये हेडिंग है, और आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसका आप इसको लिखा हुआ है पॉपुलर, कैपिटल में लिखा होगा पॉपुलर पॉपुलर आईटी कोर्सेस। आपने एक हेडिंग ली है और हेडिंग पे आपने लिखा है पॉपुलर आईटी कोर्सेस, ठीक है। और यहाँ पे आप वो कोर्सेज के नाम दे देंगे। तो जैसे आपने कहा नॉन स्टैक, फिर आपने कहा एमएस डायनामिक्स, आपने कहा यहाँ पे लेट्स से जावा फुल स्टैक, आपने यहाँ पे आपको बोला कि डेटा एनालिस्ट, क्या चलिए आपने करना क्या है यहाँ पे भी सिंपल, आपने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है हेडिंग का, आपको हेडिंग का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, इन सब का बैकग्राउंड कलर एंड फॉन्ट कलर चेंज करना है, ठीक है। आपने बैकग्राउंड से डार्क कर दिया एंड द फॉन्ट कलर इज व्हाइट। आपके हेडिंग का बैकग्राउंड कलर, एनालिस्ट आइटम का फॉन्ट कलर एंड बैकग्राउंड कलर, और उसमें आपने तीनों सिलेक्टर यूज करने हैं आपको।
ऑनलाइन हो गया? ये सर हो गया। ठीक है, तो सिंपल था, आपने हेडिंग को हेडिंग से ही सिलेक्ट कर लिया एलिमेंट के नाम से, और लिस्ट में आपने लिस्ट को क्लास के नाम से कर लिया, उसका बैकग्राउंड अप्लाई कर दिया, उसका आपने फॉन्ट कलर दे दिया। द बैकग्राउंड कलर एंड कलर, आपने दो ही प्रॉपर्टी अप्लाई करी, आपका काम इसमें हो गया। किसी का बाकी तो नहीं, किसी कुछ डाउट तो नहीं ऑनलाइन? क्वेश्चन हो रहा आपका? भाई तो आप लोग क्लास में कब आ रहे हैं भाई ट्यूशन? सर संडे को आएंगे इधर से घर से। संडे को आएंगे? हाँ आज ठीक बोलो। हम्म हम्म यहाँ तक ये हो गया तो फिर तो ओके टीम, तो आपके जो भी आउटकम होंगे आप प्लीज यहाँ पे शेयर कर दीजिए अपने। लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, and that is very important, DOM manipulation. By the way, before we start talking about the DOM manipulation in jQuery, how comfortable you all are as of now with DOM manipulation using JavaScript? हाँ जी, कितने कंफर्टेबल है आप लोग?
ऑनलाइन टीम कितनी कंफर्टेबल है आप लोग? से यस नो कुछ तो बोलोगे। कोई नहीं, लेट्स मूव ऑन। लेट्स मूव ऑन टीम एंड टॉक अबाउट jQuery DOM मैनिपुलेशन। कोई दिक्कत नहीं है। सो अभी जब प्रोग्राम करेंगे यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि अपने को भी आप लोग कितने कंफर्टेबल हैं। ठीक है, आप बोलेंगे नहीं तो ऐसे समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मूव ऑन। इफ डोंट से एनीथिंग एज सच दैट मींस आई विल टेक दैट कि हाँ आप लोग बहुत कंफर्टेबल। चलिए, सो वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ jQuery DOM मैनिपुलेशन, करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वही है कि भाई देखो, जो मेरा वेब पेज है उस वेब पेज के अंदर रन टाइम पे आई कैन ऐड एनीथिंग विदाउट मॉडिफाइंग माय यूआई पार्ट। एंड अगेन व्हेन आई से यूआई पार्ट, मतलब आपने जो भी कुछ HTML के टैग लगाए होंगे आपकी वेबसाइट डिजाइनिंग में, उनको भी बिना डिस्टर्ब करे you can add any element, you can remove any element, you can modify the property of any of the element based on the requirement. ठीक है। Now the jQuery document object model manipulation के अंदर we find lot of ready-made method to manipulate my DOM in a more effective and efficient manner. ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रेडीमेड मेथड मिल जाएंगे, जैसे कि HTML मेथड, टेक्स्ट मेथड या वैल्यू मेथड, जो मुझे अलाउ करेगा टू ऐड सम वैल्यू, टू गेट सम वैल्यू और टू मैनिपुलेट समथिंग इन द HTML DOM विदाउट राइटिंग बिग कोड। हम जब बात करते हैं DOM मैनिपुलेशन की, इसका मतलब ये हुआ कि हम कुछ तो कोड लिख रहे हैं यहाँ पे जिसके जरिए वी आर एबल टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट इन अ वेब पेज। इसका मतलब ये हो रहा है।
जब आप बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपके पास सपोज 3 पैराग्राफ थे, उसमें आपने कोडिंग के जरिए एक और पैराग्राफ ऐड कर दिया, या फिर आपके पास लेट्स से 5 div थे, उसमें से आपने div हटा दिया, तो क्या हुआ उससे आपके जो स्ट्रक्चर बना था आपके डॉम को थोड़ा सा बदल जाएगा। और ये सारा काम आप करें कैसे? थ्रू कोडिंग। तो आपके जे क्वेरी के अंदर यू हैव सम रेडीमेड इनबिल्ट मेथड, जिसकी वजह से ये काम आप बड़ा आसानी से कर सकते हैं। आप क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे? Those list of work which you can perform here under jQuery DOM manipulation is extracting the content of any element. अगर आपको जावास्क्रिप्ट में किसी एलिमेंट का कंटेंट एक्सट्रैक्ट करना होता था तो आप वहां पे क्या लगा देते? अगर आपने कुछ कंटेंट लिखा है, लेट्स से आपने लिस्ट आइटम में कुछ लिखा हुआ है, आपको कुछ पैराग्राफ में लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ चाहिए आपको बाहर, कैसे निकलता था वो? इनर टेक्स्ट, सिंपल सी बात है। और टेक्स्ट बॉक्स में है तो फिर डॉट वैल्यू, वो काम कर पाएंगे आप यहाँ पे। Then you can also modify the content of the element. ठीक है? You can add the child element, you can add the parent element, you can add before and after element. ठीक है? You can replace the existing element, you can also delete the element. मतलब इतना सारा काम आप कर पाएंगे आपको jQuery DOM के अंदर। ठीक है? कैसे? आइए जानते हैं। इसके पास जो अवेलेबल मेथड है, उस मेथड की मदद से हम ये सारा काम कर पाएंगे। एक सेकेंड ना। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा? अपने पास यहाँ पे HTML और टेक्स्ट मेथड है, जिसके जरिए यू कैन गेट एक्सट्रैक्ट द कंटेंट ऑफ द एलिमेंट इन द HTML। वहां पे मेरे पास क्या था? इनर HTML, इनर टेक्स्ट। मेरे पास यहाँ पे क्या है? HTML एंड टेक्स्ट मेथड। सिंटैक्स इज वेरी सिंपल, डॉलर एंड देन सेलेक्टर डॉट HTML और डॉलर सेलेक्टर डॉट टेक्स्ट। इसके जरिए क्या होगा? you'll be able to extract HTML element and then text element. The HTML will give me the content along with the HTML tag, and text will give me only the text content. ठीक है? आप ये नोट कर लो। पहले आप टॉपिक का नाम लिखना jQuery DOM मैनिपुलेशन, jQuery DOM मैनिपुलेशन। उसके अंदर दो मेथड टू बिगिन विद, सिंटैक्स आपका सेम रहेगा, ऐसे लिखना और सामने लिखना इट विल गिव द कंटेंट ऑफ द टैग along with the tag. This returns the content with HTML tag, and text will give you only plain text.
आप देख रहे हैं टॉपिक आपने क्या लिखा था, jQuery DOM मैनिपुलेशन, दो फंक्शन टू बिगिन विद, HTML and text. HTML will give you the content with HTML tag and text will give you plain text. चलिए, so let us see that. आपको प्रोग्राम सिंपल दिख रहा है सामने, मतलब क्या मेरे पास है यहाँ पे एक यूआई है, इसके अंदर मेरे पास एक पैराग्राफ है, इसमें कुछ लिखा हुआ है मैंने, क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, समथिंग लाइक दैट, कुछ लिखा हुआ है मैंने। देन मेरे पास यहाँ पे दो बटन है, एक का नाम लिखा है मैंने टेक्स्ट, आईडी दिया है मैंने, दूसरा हमने नाम दिया है पे HTML। इसमें लिख के आएगा गेट टेक्स्ट एंड देन गेट HTML। सिंपल सी बात है, अगर आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो इस पैराग्राफ का क्या आएगा, टेक्स्ट आएगा, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें आपको क्या मिलेगा, उसका HTML मिलेगा, मतलब पूरा का पूरा टैग के साथ आ जाएगा आपके पास इन्फॉर्मेशन। कोडिंग में आपने क्या लिखा हुआ यहाँ पे, आपने बोला वही document.ready में सारी कोडिंग करी आपने, और आपने बोला यहाँ पे कि ID सेलेक्टर डॉट क्लिक, जब ये बटन क्लिक हो तो क्या मिलना चाहिए आपको, अलर्ट में आना चाहिए, क्या चीज, सेम सिंटैक्स, सेलेक्टर डॉट
टेक्स्ट, ठीक है। और दूसरा काम क्या है, अलर्ट में सेलेक्टर डॉट एचटीएमएल, सेम काम आप कर रहे हैं। तो क्या होगा इससे, व्हेन यू क्लिक द वन बटन आपको टेक्स्ट आएगा, अदरवाइज एचटीएमएल आएगा। चलिए, सो आपको सिंटैक्स आई होप आपने लिखा होगा यहाँ पे, सेलेक्टर डॉट एचटीएमएल। चलिए, सो आते हैं यहाँ पे। आप चाहें तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको। jQuery सेलेक्टर, अब यहाँ पे आता है, मैं एक नया प्रोग्राम बनाता हूँ, उसका मैं नाम देता हूँ jQuery DOM मैनिपुलेशन डॉट एचटीएमएल, ठीक है। यहाँ पे टाइटल देते हैं jQuery, पहले आप ध्यान से देखना, ओके, उसके बाद आप प्रोग्राम करना, so that you are able to understand। क्या मेरे पास यहाँ पे है, एक पैराग्राफ है, यहाँ पे यूज करता है हेडिंग मैनिपुलेटिंग DOM यूजिंग jQuery। चलो, उसके बाद मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया, आई मीन एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड कर दी मैंने, देन आई एम राइटिंग पैराग्राफ हियर। मुझे फिलहाल इस पैराग्राफ के अंदर कुछ कहीं कहीं पे टैग भी लगाना, सो दैट आई गेट द टैग आल्सो जब मैं इसको रिसीव करता हूँ वहां से, जब मैं इसको फेच करता हूँ वहां से। सो आई शुड बी राइटिंग हियर दैट, ओके। चलो, सो एक काम करते हैं, कुछ टंग ट्विस्टर लिखते हैं। कुछ याद है किसी को टंग ट्विस्टर कुछ वर्ड याद है किसी को? C cell on seashore। आई होप सी सेल की स्पेलिंग बराबर हो। चलो, मुझे लगाना बोल्ड, इसको स्ट्रॉन्ग लगा देता, बट ठीक है। कहाँ पे, सी शोर पे करना है मुझे, सो दैट आई से हियर अगेन, इसको मैं लगाता हूँ बोल्ड अगेन, बोल्ड। चलो, तो ये हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख दिया जिसके अंदर कुछ ऐसे नहीं टेक्स्ट डाल, ओके। अब ना मुझे चाहिए पे दो बटन, कल से बटन इनटू 2। एक का नाम मैं देता हूँ यहाँ पे गेट टेक्स्ट, और इसका मैं नाम देता हूँ यहाँ पे गेट एचटीएमएल। बटन के पैसा लिख के आएगा,
मेरे पास दो बटन है तो मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा क्या, आईडी बटन 1 एंड देन मैं भी बोलता हूँ आईडी बटन 2। चलो ठीक है, क्या करना है हमें, जब मैं उस बटन पे क्लिक करूँ तो उसका टेक्स्ट मुझे मिल जाए, और जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो पूरा HTML टैग मुझे आना चाहिए। फिलहाल मेरे पास यूआई कैसा है, ऐसा यूआई मेरे पास है। इस पर क्लिक करा, पूरा टेक्स्ट आ जाएगा अलर्ट में। इस पर क्लिक करा तो पूरा टैग के साथ में आना चाहिए, बोल्ड टैग भी आ जाएगा मेरे पास। कैसे करेंगे उसको, तो फर्स्ट थिंग विच वी शुड डू हियर इज ऑलवेज लोड योर स्क्रिप्ट। क्या चीज, jQuery पहला काम। इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे और आप लिखेंगे आपका स्क्रिप्ट। सिंटैक्स मेरे पास क्या आ गई, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। जब आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो कुछ काम किया जाए, कुछ काम किया जाए मतलब कुछ फंक्शन होगा। चलो अब काम का करना है हमें, कब करना है काम हमें, जब मेरा बटन क्लिक हो तब काम करना है। तो बटन मेरे पास क्लिक मतलब क्या होगा, डॉलर बटन का आईडी हम बोलेंगे #v1 के क्लिक पे कुछ काम हो, कुछ काम हो मतलब कुछ फंक्शन हो। क्या फंक्शन हो भाई, ये v1 के क्लिक पे हो जाएगा और सिमिलरली आपके v2 के क्लिक पे भी हो जाएगा। ठीक है, चलो क्या चाहिए अभी हमें, अलर्ट बॉक्स में दिखे, क्या दिखे भाई, अगेन सिंटेक्स क्या है, डॉलर सेलेक्टर एलिमेंट सेलेक्टर देन डॉट टेक्स्ट। ये भी मेरे पास क्या आएगा, अलर्ट बॉक्स में दिखना चाहिए। क्या आएगा, सिंटैक्स मेरे पास क्या, डॉलर देन सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर कौन है, पैराग्राफ का मुझे क्या चाहिए, HTML। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और देखते हैं क्या कहता है हमें ये। गेट टेक्स्ट से पूरा अपने पास टेक्स्ट आ गया, प्लेन टेक्स्ट आ गया, नो HTML फॉर्मेटिंग नथिंग, एंड देन इस पे आपका आ गया पूरा का पूरा टैग के साथ में आ गया। ठीक है, ये सारा काम करने के लिए हमने जो कोड लिखा है यहाँ पे, दैट कोड इज वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। बटन क्लिक का इवेंट भी हैंडल करना काफी आसान है ना। आपने यहाँ पे बटन पे आपने कहीं ये नहीं बोला कि ऑन क्लिक इन समथिंग लाइक दैट, आप सिंपल यहाँ बोल रहे हो कि भाई ये दिस वन इज क्लिक, तो ये काम हो जाएगा, आपका ये क्लिक हुआ ये काम हो जाएगा, दैट्स इट। तो राइटिंग द कोड इन jQuery is far simpler and easier compared to JavaScript। ऑनलाइन टीम में फीलिंग आ रही है आप लोगों को सभी को कि कोड लिखने यहाँ पे कंफर्टेबल है, थोड़ा आसान है, फंक्शन है रेडीमेड तो काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। हम वहाँ पे क्या Yes, लिखते yes. हैं, हम वहाँ लिखते हैं इनर टेक्स्ट, हम वहाँ बोलते हैं इनर HTML। बोलना पड़ता डॉक्यूमेंट ऑफ गेट एलिमेंट बाई आईडी डॉट समथिंग, वो थोड़ा लेंदी रहता है, यहाँ पे काम आपका थोड़ा कम हो रहा है, कम कोड में काम हो रहा है। गुड, बढ़िया। तो ऐसे अपने पास और भी मेथड आएंगे जहाँ पे जिसकी वजह से आप अपने मैनिपुलेशन वाले काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप इससे पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाकी और चीज़ों के बारे में। तो अगर मेरे पास कोई फॉर्म बना होगा तो उसकी मैं वैल्यू कैसे निकालूं, तो उसके लिए मेरे पास क्या फंक्शन है, कुछ अगर मुझे असाइन करना है तो मैं कैसे असाइन करूँ। ठीक है, तो सारा प्रैक्टिस हम करते हैं। पहले आप ये वाला प्रोग्राम कर लो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रोग्राम कर लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं, सो दैट यू आर कंफर्टेबल इन राइटिंग दिस काइंड ऑफ सिंटैक्स, फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी, देवेंद्र बेटी आपस में बात करें प्लीज। अब लोग का हो गया। What are the music like? What are the music you like? Hmm? 90s. 90s. Who are the favorite singers? गाना वगैरह सारे पसंद आते हैं 90s वाले। अच्छा, आजकल वाले पसंद नहीं आते। आजकल वाले पसंद नहीं आते, सभी नहीं पसंद आते। कुछ लोग हैं इसका दुकान पसंद आते। तो अच्छी टी शर्ट है। कुछ आपका और है? कीवर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है। इसलिए एक लाइन यूज करते हैं। पहले तो वो वेरिएबल में देंगे, वो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट लिखेंगे और फिर एडिंग है। उसके बाद में उसको सेलेक्ट करने के बाद डॉट इनर टेक्स्ट क्या है समझना पड़ेगा। जो काम आपको 2 से 3 लाइन में होता था वो आप स्ट्रिंग हो गया, जिप हो गया। ऐसा भी नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड है, एकदम सिंपल तो समझ में भी आ रहा है। ये आगे से कितना है, टेक्स्ट निकाल दो। तो काम करने में सिनाप्स इस टाइप ऑफ बस सिंटैक्स एक पूरा कॉमन सिंटैक्स है। सिलेक्टर डॉट एक्शन, आपको जो काम करना है कर लो। आप इवेंट हैंडलिंग करना चाह रहे हो, फंक्शन लगाना, कुछ भी करना है, पैटर्न से करो। ऑनलाइन टीम आपका हो जाए एक बार, जस्ट लेट मी नो, फिर आगे बढ़ते हैं।
Done. Very good. बढ़िया. Thank you, Lavesh, confirming. Sorry. वो तो था ना शायद कि सागर हूँ लौट के दोबारा आऊंगा, समथिंग लाइक दैट. पानी देखकर किनारे पे घर मत बना लेना, मैं समंदर हूँ लौट के आऊंगा. लौट के आऊंगा चालू है. इतना देर तक चालू नहीं था, अब सब चालू हो जाएगा. और दूसरी भी कॉमेडी होगा, वो तीनों किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, फडणवीस, शिंदे और अजित पवार. तो ये रिपोर्टर्स शिंदे को पूछते हैं कि सर आप भी शपथ लेने वाले हो क्या? हमारा तो किसी लेकिन बोल नहीं सकते. शाम तक बताऊंगा मैं. देख लेना क्या होने वाला है. सेम क्वेश्चन अजित पवार बोलता है, मैं तो लेने वाला हूँ, मेरे को बाकी नहीं मालूम, तुम्हारा देख लो, मेरे को लेनी है. उनके अपने अलग ही वजह से. आई वाज गिविंग डिप्लोमेटिक आंसर कि शाम तो पता चल जाएगा आपको. तो बगल में बैठे थे पवार साहब, पर उनका नहीं पता, बट मैं लेने वाला हूँ, मैं कंफर्म मेरा. तो बोलते हैं हाँ दादा को सुबह शाम दोनों टाइम लेने का एक्सपीरियंस है. लास्ट टाइम किया था ना उन्होंने ऐसा. आज 5 बजे शाम को है ना. But I'm not supporting anyone as such, but then the person is having the capability to make anybody understand. सब लोग बना के हार गए, तो फिर ये भाई साहब गए समझाने. एक मीटिंग बैठे गपचुप कमरे में अपने शांति से दोनों जन सेटल. बोला कि भाई क्या तू कर रहा है, सेम काम मैंने भी करा था, मैं सीएम था, तुम्हारे अंदर में डिप्टी सीएम बन के काम किया, अब बाजी थोड़ी पलट गई है, कुछ नहीं होने वाला, शांति से रहे. सेम तो चीज है, मिल बांट के काम करेंगे, टेंशन मत लेना. चेयर बदली खाली, अब मैं उधर आ गया, आप इधर आ गए, बस सब कुछ वैसे ही रहने वाला. ऑर्डर तो वैसे ऊपर से आने वाला है. आपने भी साइन करना, मुझे भी साइन ही करना. कर रहा है तो सीएम की अजित पवार की शपथ ले लो, आप लोग संभाल. फाइनेंस मिनिस्ट्री. अच्छा, होम मिनिस्ट्री और ऑनली डन. ओके, बढ़िया. सो आई एम श्योर आप लोग इस तरह की कोडिंग को एंजॉय कर रहे हैं अभी तक, है ना. शुरुआत है, अभी तक मेरे पास आगे और भी चीजें आएंगी, बट ठीक है. गुड, आगे बढ़ते हैं. तो हमने देखा ये एक मेथड व्हिच वाज दैट इज एचटीएमएल एंड टेक्स्ट, जहाँ पे क्या किया आपने कंटेंट निकाला वहां से जो भी आपके इस टैग के बीच में लिखा हुआ था यहाँ पे. तो गेट टेक्स्ट ने आपको पूरा का पूरा टेक्स्ट दे दिया था, एंड गेट एचटीएमएल ने आपको पूरा एचटीएमएल के साथ में टेक्स्ट दिए थे कि भाई आपने जो भी कुछ लिखा है यहाँ पे, उसमें क्या क्या टैग लगाया आपने, वो मिला था आपको. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि ये था आपका पैराग्राफ टैग. ओके, हाउ डू गेट द वैल्यू फ्रॉम द इनपुट फील्ड, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्सेस. ओके, उसके लिए आपके पास जो फंक्शन उसका नाम क्या है, डॉट वैल्यू. सिंपल सी बात है, आप बोलेंगे सिलेक्टर डॉट वैल्यू. इस प्रोग्राम में मेरे पास है क्या चीज, दो टेक्स्ट बॉक्स है, पैराग्राफ है, नेम लिखा हुआ यहाँ पे, एंड देन दो टेक्स्ट बॉक्स है. इसका आईडी का नाम मैंने दिया नेम, उसका मैंने नाम दिया क्लास करके. ओके, तो इस क्लास में तो स्टैंडर्ड डिवीजन किस क्लास में होगा बच्चा, उस हिसाब से मैंने नाम दे दिया. ठीक है, वैल्यू इज समथिंग लाइक दिस, मैंने बाय डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी, या फिर जो आप टाइप करेंगे वो भी आएगा. और यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल रखी है दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स में, क्लास 12 लिख रखा मैंने. अगेन दो बटन मेरे पास होंगे सेम तरह से, B1 एंड B2. यहाँ आते हैं, आपने क्या बोला, अगर बटन 1 क्लिक करा तो आप क्या निकालने वाले हैं, पहले वाले बॉक्स से वैल्यू निकाल रहे हो.
अगर B2 क्लिक हुआ तो फिर सेकंड वाले बॉक्स से आप वैल्यू निकाल रहे हो। हैश नेम एंड हैश क्लास के आपके फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स और सेकंड टेक्स्ट बॉक्स की आईडी है। तो आप यहाँ पे क्या सीख रहे हो? आप सीख रहे हो कि भाई आपके पास अगर टेक्स्ट बॉक्स रहा उसमें टाइप की गई वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। उसके लिए आपके पास फंक्शन क्या है? डॉट वैल्यू। वेरी सिंपल। आते हैं तो क्विकली प्रैक्टिस करते हैं इसका, मतलब प्रैक्टिकल कर लेते हैं इसका। चाहूँ तो मैं इसमें मॉडिफाई करके कर सकते हैं 2 मिनट में, ठीक है, बट आपको ये लगे ना कि कंफ्यूजन कि भाई कहाँ पे क्या कर दिया सर ने, एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता हूँ गेटिंग वैल्यू, गेटिंग इनपुट वैल्यू डॉट एचटीएमएल। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, पहले क्या बनाता हूँ? फॉर्म बनाता हूँ। नेम देन इनपुट टैग, इनपुट टाइप इज टेक्स्ट, देन आईडी में इसमें नाम लिखते हैं यूजर नेम, वैल्यू आई एम नॉट टाइपिंग एनीथिंग एज सच। देन अब इसको जरा ऐड कर देते हैं पैराग्राफ टैग के अंदर, सो दैट मुझे जाके बाद में कहीं भी ब्रेक बुक लगाने की नौबत नहीं आए। देन के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज पासवर्ड, ओके। इनपुट टाइप में फिलहाल टिक सकता हूँ बिकॉज आई वांट यू ऑल टू सी व्हाट आई एम टाइपिंग देयर। एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजर पासवर्ड इज द आईडी नेम ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। अब मेरे पास हो जाएंगे 2 बटन, बटन इन टू कर लेते हैं। एक का नाम होगा गेट, तो एक ही रखते हैं यहाँ पे, गेट वैल्यू तो चाहिए हमें यहाँ पे, बटन का नाम रखते हैं यहाँ पे गेट वैल्यू। फिलहाल मुझे यहाँ पे कोई टेक्स्ट एंड एचटीएमएल नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? गेट वैल्यू चाहिए। अब गेट वैल्यू मुझे चाहे तो मैं एक बटन पे दोनों निकाल लूँ, ठीक है, या फिर मैं अलग अलग करूँ। In case you want to both separately, तो आप बोलेंगे get name then button get password, ठीक है। क्योंकि आपके पास 2 बटन है यहाँ पे, तो उनको सेपरेट करने के लिए आप यहाँ पे लगाएंगे उनको आईडी बटन 1 एंड बटन 2, तो आईडी B1 एंड B2, ठीक है। ये हो गया आपका डिजाइन वाला पार्ट। नाउ लेट्स राइट डाउन द DOM मैनिपुलेशन कोड। पहले आप लोड करेंगे आपका jQuery का स्क्रिप्ट, ये आ गया स्क्रिप्ट आपका, and then we will write down the code to do this thing. So we know that we are writing entire code inside document.ready will say $, then जब मेरा पूरा UI ready हो जाए तब कुछ काम किया जाए, काम मतलब फंक्शन किया जाए, ठीक है। चलो काम कब किया जाए भैया? जब मेरा बटन क्लिक हो, तो अगेन सिंटैक्स मेरे पास क्या? डॉलर सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर मेरे पास है, तो डालूंगा मैं हैश B1। जब ये सेलेक्ट हो तो क्या हो? कुछ काम। कब? लेकिन क्लिक पे कुछ काम हो, तो क्लिक पे हम कुछ फंक्शन करते हैं, काम मतलब कुछ फंक्शन करते हैं। काम क्या आपके पास है? आप अलर्ट बॉक्स में प्रिंट कराना चाहते हैं, क्या चीज भाई? ठीक है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे क्या? डबल कोट में हैश में यूजर नेम डॉट, उसी क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। सेम काम आप कर रहे हैं,